संबलपुर भी अग्रणी भूमिका नब ये दायित्व सह ओडिशार दायित्व सह पुनः प्रधानमंत्री पाखे कृतज्ञता ज्ञापन करी तांकर आज ये अमूल्य समय आम भितर देइचंती बितेबा पाई। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। जय जगन्नाथ, जय मां समलेश्वरी। Honorable Prime Minister Ji, Honorable Union Ministers, Director, Professors and students of IIM Sambalpur, distinguished guests, ladies and gentlemen, Samastanku Jua. I congratulate all of you, especially the students and teachers, for the new infrastructure at IIM Sambalpur. I thank the Honorable Prime Minister for taking time off his busy schedule to come here and grace the inauguration of this new campus. I hope learning here will be an enriching and exciting experience for all the students. IIMs are known for the quality of education they provide in a short span of time. IIM Sambalpur has made its mark by creating some of the best graduates. Today, most of you secure jobs in corporate fields and have successful placements in the best companies in the world when you graduate from IIM. I urge each of you who have made remarkable achievements in their careers to think of how they can contribute for their state. Not only think of their school as alumni, but to be alumni of the state and contribute by sharing their knowledge and vast experience. The Honorable Prime Minister has set a new direction for India, and we are on the path to become an economic powerhouse. This is a golden time for startups in India. Odisha is a top performer in the country for promotion of startups. Our youth should be invested in using their innovative ideas for creating jobs. The energy, the brilliance and the innovative ability of our youngsters will definitely take our country to a future that will be a guiding light for the globe. Today, you are hosting the first World Odia Language Conference and are fortunate to have the Honorable Prime Minister, who is a lover of Indian languages with us in Odisha. Thank you. Bande Utkal Janan. आज एठारे 78,000 कोटी टंकार 18टी प्रकल्पर शिलान्यास हेब, उद्घाटन हेब एवं लोकार्पण हेब। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जिन प्रोजेक्ट्स के नींव रखे जाते हैं, शिलान्यास किए जाते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को समय के भीतर
पूरा करके लोकार्पित भी किया जाता है और यही तो सही अर्थ में विकास है। आज यहां जिन मंत्रालय के 10 प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन किए जाएंगे और 4 प्रोजेक्ट्स विल बी डेडिकेटेड टू द नेशन and foundation stones will be laid for 4 projects. These ministries are Ministry of Education, Ministry of Railways, Ministry of Coal, Ministry of Petroleum, Ministry of Power, Ministry of Posts and Telegraphs, Ministry of Road and Transport. अब हम रिमोट के बटन दबा के इन सारे परियोजनाओं को उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पित तथा राष्ट्र को समर्पित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं। अड़सठी हजार कोटी टंकार 18 प्रकल्प। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। नाउ विल सी ए शॉर्ट फिल्म ऑन दीज प्रोजेक्ट्स। आइए विविधताओं और विरासत का अनूठा संगम भारत, और ये विविधता और विरासत स्पष्ट होती है भगवान जगन्नाथ की भूमि ओडिशा में, भारत का उत्कल प्रदेश, जो वन संपदा, खनिज, रंगबती संगीत, बोलियों, वास्तुकला, शिल्प, नृत्य, कला और संस्कृति की प्राचीन विरासत से है समृद्ध, और विरासत के साथ विकास को बढ़ावा दे रहे हैं दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत के तेज विकास के लिए सभी राज्यों की प्रगति की गति को बनाए रखना है बहुत जरूरी। इसीलिए सबका साथ, सबका विकास की समदर्शी सोच के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की आवश्यकताओं से जुड़ रहे हैं और आज देने जा रहे हैं ओडिशा को 68,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की भव्य सौगात। इंफ्रास्ट्रक्चर से लोगों का सिर्फ जीवन ही आसान नहीं होता, बल्कि ये समाज को भी सशक्त करता है। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव होता है, वहां लोगों का विकास भी पिछड़ जाता है। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है, वहां लोगों का विकास भी तेजी से होता है। भारत का ऊर्जा केंद्र है ओडिशा, और यहां उद्योगों के विकास और बेहतर जनजीवन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है सतत ऊर्जा। इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री जी लोकार्पित कर रहे हैं 15,000 करोड़ रुपए की लागत से बना 1600 मेगावाट क्षमता वाला एनटीपीसी दल्लीपाली सुपर थर्मल पावर स्टेशन तथा 2300 करोड़ रुपए की लागत से बनी एनटीपीसी की संयुक्त उद्यम कंपनी एनएसपीसीएल की राउरकेला PP2 विस्तार परियोजना, साथ ही 1320 मेगावाट की क्षमता वाले तालचेर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के तीसरे चरण का प्रधानमंत्री जी द्वारा हो रहा है शिलान्यास। इसकी अनुमानित लागत 12,000 करोड़ रुपए है। यह परियोजना पर्यावरणीय विशेषताओं के साथ आर्थिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है।
इन तापीय ऊर्जा परियोजनाओं से बनी आधी बिजली ओडिशा को समर्पित होगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं जगदीशपुर हल्दिया तथा बोकारो धामरा पाइपलाइन के धामरा अंगुल खंड का और शिलान्यास करेंगे मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा पाइपलाइन परियोजना के नागपुर झारसुगुड़ा खंड का, जिससे न सिर्फ ओडिशा में रोजगार के अपार अवसर खुलेंगे, वहीं स्वच्छ ऊर्जा की सुलभता भी तेजी से बढ़ेगी। ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने की इसी कड़ी में प्रधानमंत्री जी शिलान्यास कर रहे हैं 27,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले NLCIL तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट का। अत्याधुनिक संयंत्रों वाली इस तापीय ऊर्जा परियोजना की उत्पादन क्षमता 2400 मेगावाट होगी। साथ ही प्रधानमंत्री जी उद्घाटित कर रहे हैं 4 अन्य परियोजनाएं। राज्य के विकास के साथ बेहतर कनेक्टिविटी प्रधानमंत्री जी का प्रमुख उद्देश्य रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री जी लोकार्पित कर रहे हैं संबलपुर तालचेर रेल लाइन का दोहरीकरण, खोर्धा रोड बलांगीर नई रेल लाइन का झाड़तरभा सोनपुर सेक्शन और उद्घाटित कर रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 520 का 4 लेन रिमोली कोयड़ा खंड, राष्ट्रीय राजमार्ग 143 का 4 लेन वीर मित्रपुर ब्राह्मणी बाईपास खंड, 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग 143 का ब्राह्मणी बाईपास राजामुंडा खंड तथा बेहतर नागरिक सेवाओं के लिए कर रहे हैं शुभारंभ। पुरी सोनपुर पुरी साप्ताहिक एक्सप्रेस लोकार्पण कर रहे हैं झारसुगुड़ा डाकघर के पुनर्विकसित भवन और उद्घाटन कर रहे हैं IIM संबलपुर के भव्य भवन का। साथ ही आज शिलान्यास हो रहा है संबलपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास का, जिससे ओडिशा का समग्र विकास हो सुनिश्चित। राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं के साथ देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़े और बेहतर होती कनेक्टिविटी के साथ राज्य की खनिज संपदा का बेहतर प्रयोग हो सके, उद्योग तेजी से तरक्की करे, राज्य का युवा बेहतर शिक्षा से अपनी सक्षमता को बढ़ाए, राज्य में रोजगार के असीम अवसर खुलते रहें, जन सुविधाओं में बढ़ोतरी से जनजीवन सरल हो। आज प्रधानमंत्री जी ने IIM संबलपुर से ओडिशा को दी है इन परियोजनाओं की सौगात, ताकि विकसित भारत के लिए विकसित ओडिशा ले आकार। आज ओडिशा पई आउ एक शुभ दिन। ए पर्यंत रेलबाई नेटवर्क रु वंचित थिबा सुवर्णपुर जिला आज रेल सहित रेल जोगाजोग सहित संयुक्त होगा जाउछि। प्रधानमंत्री प्रेरणा एवं रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव को प्रचेष्टा जोगु ओडिशा के एक जिला सुवर्णपुर या सोनपुर आज देश के रेल नेटवर्क से जुड़ने जा रही है। पूरी सोनपुर पूरी साप्ताहिक एक्सप्रेस का शुभारंभ से सोनपुर भारत के रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगी। अभी हम अनुरोध करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूरी सोनपुर पूरी एक्सप्रेस को कृपया अपने शुभ हाथों से हरी झंडी दिखाकर फ्लैग अप करके एक नए दौर की शुरुआत करें। Honorable Prime Minister will flag up the new train from Sonpur, which will benefit the people and boost the economy of the area. एबे आमे सोनपुर रेल स्टेशन रो दृश्य देखि पारछु, जेउठारे पूरी सोनपुर पूरी एक्सप्रेस उपस्थित अछि एवं यह वर्तमान गड़िबा को आरंभ करुछि। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। यहाँ के महान कवि गंगाधर मेहर जी के प्रसिद्ध तपस्विनी काव्य ने लिखा है, यद्यपि सत्य अच्छी जगत धर्म देखिबो जगत मो अद्भुत कर्म। अगर सत्य ही धर्म है और अगर धर्म ही सत्य है, इतिहास मेरे कर्मों का हिसाब रखेगा और सराहेगा। हमारे प्रधानमंत्री कर्म योगी है,
इसलिए वे हमारे अपने हैं, हमारे प्रिय हैं। आइए आपके तालियों के गड़गड़ाहट के बीच में हम हमारे अपने प्रिय माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करें वो अपने अभिभाषण रखने के लिए। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास जी, मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान नवीन पटनायक जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी धर्मेंद्र प्रधान, अश्विनी वैष्णव, विश्वेश्वर तुडू, संसद के मेरे साथी नितेश गंगादेव जी, आईआईएम संबलपुर के निर्देशक प्रोफेसर महाजनों, आज ओडिशा की विकास यात्रा के लिए बहुत ही अहम दिन है। मैं ओडिशा के लोगों को करीब 70,000 करोड़ रुपए के इन विकास प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसमें शिक्षा, रेल, रोड, बिजली, पेट्रोलियम से जुड़ी अनेक परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं का लाभ ओडिशा के गरीब, मजदूर, कर्मचारी, दुकानदार, व्यापारी, किसान यानी समाज के सब वर्गों को इसका लाभ होगा। ये परियोजनाएं ओडिशा में सुविधाओं के साथ साथ यहां के नौजवानों के लिए रोजगार के हजारों नए अवसर भी लाने वाली है। साथियों, आज देश ने अपने एक महान सपूत पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का भी निर्णय लिया है। भारत के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में और दशकों तक एक निष्ठावान, जागरूक सांसद के रूप में आदरणीय आडवाणी जी ने देश की जो सेवा की है वो अप्रतिम है। आडवाणी जी का ये सम्मान इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन खपाने वालों को राष्ट्र कभी भुलाता नहीं है। मेरा सौभाग्य रहा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी का स्नेह, उनका मार्गदर्शन मुझे निरंतर मिलता रहा है। मैं आदरणीय आडवाणी जी के दीर्घायु होने की कामना करता हूं और उन्हें ओडिशा की इस महान धरती से समस्त देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हमने ओडिशा को शिक्षा का, कौशल विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। बीते दशक में ओडिशा को जो आधुनिक संस्थान मिले हैं, शिक्षा संस्थान मिले हैं, वो यहां के युवाओं का भाग्य बदल रहे हैं।
आइसर ब्रह्मपुर हो या भुवनेश्वर का इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, ऐसे अनेक संस्थान यहां स्थापित किए गए हैं। अब IIM संबलपुर भी मैनेजमेंट के आधुनिक संस्थान के रूप में ओडिशा की भूमिका को और सशक्त कर रहा है। मुझे याद है 3 साल पहले कोरोना काल में ही मुझे IIM के इस कैंपस के शिलान्यास का अवसर मिला था। अनेक रुकावटों के बावजूद अब ये शानदार कैंपस बनकर तैयार है और आप लोगों का जो उत्साह मैं देख रहा हूं ना, उसे मुझे लगता है कि कैंपस आपको कितना प्यारा लग रहा है। मैं इसके निर्माण से जुड़े सभी साथियों की प्रशंसा करता हूं। साथियों, विकसित भारत के लक्ष्य को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब भारत का हर राज्य विकसित बने। इसलिए बीते वर्षों में हमने ओडिशा को हर सेक्टर में अधिक से अधिक सपोर्ट किया है। केंद्र सरकार के प्रयासों से ओडिशा आज पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में भी नई ऊंचाई प्राप्त कर रहा है। पिछले 10 सालों में ओडिशा में पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। ज्यादा बजट दिया है। इन प्रोजेक्ट से झारखंड और ओडिशा के बीच इंटर स्टेट कनेक्टिविटी बढ़ेगी और यात्रा की दूरी भी कम होगी। आज संबलपुर तालचेर रेलखंड का दोहरीकरण, जार तरभा से सोनपुर सेक्शन तक नई रेल लाइन का भी शुभारंभ हो रहा है। पूरी सोनपुर एक्सप्रेस से सुबर्णपुर जिला यानी हमारा सोनपुर जिला आज इससे श्रद्धालुओं के लिए भगवान जगन्नाथ का दर्शन करना और आसान हो जाएगा। ओडिशा के हर परिवार को पर्याप्त और सस्ती बिजली मिले, इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। यही है भाई और बहनों, बीते 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने जो नीतियां बनाई है उनका ओडिशा को बहुत अधिक फायदा हुआ है। हमने खनन के क्षेत्र में जो नए रिफॉर्म किए हैं, ओडिशा उसका बहुत बड़ा लाभार्थी रहा है। खनन नीति में बदलाव के बाद ओडिशा की आय में 10 गुना की वृद्धि हुई है। पहले खनिज उत्पादन का लाभ उन क्षेत्रों और राज्यों को उतना ही मिल पाता था जहां से खनन होता है। हमने इस नीति को भी बदला। केंद्र की भाजपा सरकार ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का गठन किया। इसे खनिज से हुई आय का एक हिस्सा उसी क्षेत्र में विकास के लिए लगाना सुनिश्चित हुआ। इससे भी ओडिशा को अब तक करीब 25,000 करोड़ रुपए से अधिक मिल चुके हैं। ये पैसा जिस क्षेत्र में खनन हो रहा है वहां के लोगों के कल्याण के काम आ रहा है।
मैं ओडिशा की जनता को आश्वस्त करता हूं कि केंद्र सरकार इसी समर्पित भाव से ओडिशा के विकास के लिए काम करती रहेगी। साथियों, मुझे यहां से एक बहुत बड़े कार्यक्रम में जाना है, खुले मैदान में जाना है, तो वहां मिजाज भी कुछ और होता है। तो मैं यहां लंबा समय आपका नहीं लेता हूं, लेकिन वहां मैं जरा अधिक समय लेकर के काफी बातें करूंगा। 15 मिनट के बाद उस कार्यक्रम में पहुंचूंगा। एक बार फिर आप सभी को विकास कार्यों के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और मेरे युवा साथियों को विशेष बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त अतिथिवृंद, छात्र छात्री एवं आपण मानकु अनेक अनेक धन्यवाद। कार्यक्रम ये सरुचु। माननीय प्रधानमंत्री को आम मंच पर विदाय देचु। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। ओडिशा के संबलपुर वहां पर पहुंचे और कई सारे